Welcome dear friends. Once again we will start with our physics lecture. Today the topic is moving charges and magnetism continued. Some phases I am getting first in this year. So welcome. I welcome all of you for the lecture. Yesterday we have seen about the finite, infinite, semi-infinite cases. Okay, so those who have watched my video yesterday, they will get the idea. So we were discussing about the magnetic field at any point due to a straight conductor. Straight conductor. That conductor will not be curved and all. Straight. It may be finite conductor just like this. It may be infinite. Infinite का मतलब क्या है? If the conductor is having larger length, then we can call it as a infinite conductor. And yesterday I have given you what are the cases, different cases for which we can get the magnetic field for finite and infinite or semi-infinite type of the conductor. The basic formula we took, that is mu naught I upon 4 pi d sin alpha plus sin beta. Did you get it? Are you sorry? So sin alpha plus sin beta. That was the formula. Now on that formula I told you how to operate. When to take alpha 90, when to take alpha 0. You see my lecture, yesterday's lecture, you will come to know. Yesterday means today it has been published. So that you see. Have you seen today's lecture? No, because I posted it at 10:30. So today you may watch it at night. This lecture I will publish tomorrow. For you people it is today only. It's okay. Now the main part of this topic is somewhere we will call it as a solenoid. I am writing in big letters because whatever people are watching online, they must be able to get the words clear. Solenoid. So what is different in the solenoid? Nothing. Solenoid is not that much of difficult to understand. It's very easy. What is the solenoid? It is a conducting wire, but not in the form of straight conductor, but wound in specific format. So these are called as the winding. So I have taken the wire and I have wound it like this. That will be called as the solenoid. Already in my lectures I have shown it. This is winding type 1. And second one will be winding type 2. So in type 2 winding type 2. So first, as I told you prior, I have taken the solenoid, this is the wire. Suppose this is my wire and I have bound it something like this in front of you. Let me show the demonstration. So if I wind it like this, I hope you will be able to understand. This is the first winding. So now wire has wound like this. Getting my point? Another way to wind it, you take it from the back and let's wind it. That is also the winding. तो एक को क्या किया, पहले को एक बाजू से ऐसे वाइंड किया, ऐसे वाइंड, इधर से जाके ऊपर गया. वो दिखाने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. एक पाइप लिया सपोज और उस पाइप के ऊपर को हमने वाइंडिंग किया. सपोज हाइपोथेटिकली एक पाइप लिया मैंने, तो पहले वाला वाइंडिंग ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ जाएगा आगे आपको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो दैट विल बी लाइक दिस. तो आगे वाला पार्ट रहेगा और ये पीछे वाला पार्ट रहेगा.
बहुत दिन से मार्कर चला नहीं है, उसको इंक का जरूरत है, बाद में करेंगे। दूसरे वाला वाइंडिंग ऐसे आएगा कि यहाँ पे सपोज एक पाइप नहीं लेते हैं, लेकिन वो पहले वाइंडिंग बनाते हैं, वो पाइप के ऊपर ही बनाते हैं, पाइप मतलब कौन सा भी सिलिंड्रिकल पार्ट, और बाद में उसको निकाल देते हैं, तो वो स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग मालूम है आपको? हाँ, पेन में स्प्रिंग होता है, अरे हाँ वो दिखा है तो अच्छा चलेगा, ऑनलाइन वालों के लिए स्प्रिंग दिखा है बेटा, स्प्रिंग है, दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? इसके भी दो टाइप के बाइंडिंग है, एक ऐसे वाला, एक नहीं तो ऐसे वाला। तो वैसे अगर किया तो इट विल लुक लाइक दैट। सो ऐसे दिखता है। तो ये कैसे दिखेगा वो दिखा तो आपको 2 मिनट के लिए, बाकी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। क्या क्या लेना है मैं आपको पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा, उतना नोट डाउन करते जाओ और अपना डेरिवेशन वगैरह जो कुछ लिखना है दैट विल बी देयर। तो यहाँ पे कैसे चलेगा, पीछे से जाएंगे बेटा, ऐसे आएंगे, अरे गेटिंग द पॉइंट? ये भी वाइंडिंग हो गया ना। तो पहले पीछे गया, पीछे से उसको ऐसे वाइंड। तो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस क्या आता है ना बेटा, डिफरेंस ये आता है, इफ आई एम वाइंडिंग लाइक दिस देन आई विल गेट 2 केसेस। तो वो केसेस आपको बता के रखता हूँ, अगर चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो पहले वाले लेक्चर में भी मैंने वो सिखाया आपको, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, जिनको चाहिए वो नोट डाउन करके ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलेगा प्लीज। तो ये हो गए दो टाइप के वाइंडिंग। तो अगर मैंने स्टार्ट किया पहले वाले वाइंडिंग से, इसको ऐसे लिखता हूँ, तो यहां लिखता हूँ प्लस, यहां लिखता हूँ माइनस। दूसरा केस, वाइंडिंग वैसे ही रखा लेकिन करंट उल्टा दिया, कर सकते नहीं कर सकते हैं? अरे यस और नो, हाउ वी कैन डू दैट? करंट ऐसे चाहिए तो क्या करना चाहिए, करंट ऐसे चाहिए तो क्या करना चाहिए, बोलिए, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। कैसे करेंगे ये, प्लस कैसे आएगा बेटा, प्लस कैसे आएगा? थोड़ा हिंट देता हूं आपको, अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे? My dear students, how we will do this? Just by connecting the terminals of the battery, yes or no? That only. यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करने का, यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट करने का, वही दिखा है, हिंट तो दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव तक जाएगा ना बेटा, करंट जा रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्मिनल को निगेटिव कनेक्ट करो, काम हो गया। अरे सर समझ में आ रहा है? अरे गेटिंग द पॉइंट, समझते हैं? नथिंग। सो इफ आई विल डू लाइक दैट, अभी आपको थिंक करना है करंट कैसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया, अगर करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो कैसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, अंदर गया मतलब अंदर, थंब क्या दिखाता है, थंब दिखाता है नॉर्थ, तो ये कैसे गया, इधर नॉर्थ इधर साउथ, मतलब ये नॉर्थ साउथ ऐसे। अगर मैं उल्टा लिया तो सामने से देख रहा, आप देख रहे हो ना, उल्टा लिया, करंट ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे भी अगर मैंने इसको लिया है तो वायर कैसा घुमाए, देखो, हाँ वायर ऐसा घुमाए, वायर कैसे घुमाए आपको दिखाऊं सामने करके, वायर को मैंने ऐसा घुमाया, तो मेरा कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो अगर उसी डायरेक्शन में करंट है मेरा, घूमने का डायरेक्शन भी, तो वो रहेगा क्लॉकवाइज, तो यहां से दिखने के लिए मेरे को दिखेगा क्लॉकवाइज। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ इट इज क्लॉकवाइज देन my north pole will be where? Here will be north pole, yes or no? And here will be south, yes or no? यहाँ पे नॉर्थ दिखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यार यहाँ पे दिखेगा मेरा नॉर्थ, तो ये हो जाएगा मेरा साउथ। तो यहाँ से ये फील्ड लाइन ऐसे निकलते दिखेंगे, अरे yes or no?
हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म लाइंस और आउटसाइड इट विल बी डाइवर्जिंग। अंदर तो यूनिफॉर्म रहेगा, अंदर द लाइन्स विल बी पैरेलल, अंदर में क्या फील्ड लाइन्स विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, जैसे मैग्नेट को बोलते हैं वैसे। बन गया? कमाल की बात है, समझ गया। यहाँ पे क्या करें, उल्टा है, वायर तो वैसे रखा है ऐसे और यहां से गया, कैसे गया देखो, यहां से चालू हो गया, ऐसे घूम गया और गया वहां से, लेकिन चालू कहां से किया? पॉजिटिव उधर है करंट, लेकिन आएगा ऐसे, तो दिखने के लिए आप इस सामने दिखा, वायर को मैंने ऐसे वाउंड किया, हाँ चालू उधर से किया, तो करंट कैसे जर्नी करेगा? उल्टा आएगा करंट, ऐसे आएगा, तो करंट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। if it is anti-clockwise then north pole will be towards you। तो यहाँ पे अगर घुमाया मैंने इसको, इधर लेके गया तो करंट भी ऐसे जाएगा, ऐसे दिखेगा, अरे तो नॉर्थ पोल विल बी वेयर? टुवर्ड्स मी। यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखेंगे, समझ गए नहीं समझ गए? कमिंग आउट, यहाँ पे पूरी अंदर कैसे पैरेलल लाइन, ये इसको कनेक्ट कर करो, कनेक्ट करने के लिए अंदर तो ऐसे साउथ टू नॉर्थ है ना, ये भी इसको कनेक्ट करके, ये भी इसको करके, इसको कनेक्ट करके इधर ऐसे करके, तो अंदर में वो साउथ साउथ से नॉर्थ जाएगा, आउटसाइड नॉर्थ से ऊपर जाएगा, इनसाइड साउथ को आएगा, सॉरी आउटसाइड यहाँ से। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? दीज आर वाइंडिंग 1, वाइंडिंग टाइप 1, इसमें करंट दो टाइप का है, तो इसका मैंने ये टाइप 1 वाइंडिंग टाइप 1 ए और ये बी। ए में क्या है? करंट का डायरेक्शन एक था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन। आगे गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए आगे जाते, आगे के लिए तो वाइंडिंग टाइप 2 कैसे आएगा? ऐसे आएगा, अरे ऐसा नो, अरे ऐसा नो, वाइंडिंग टाइप को अगर ऐसा हो गया, नींद आ रही है? लोरी गाऊं आपके लिए? अच्छा गाना गाता हूं, बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव माने करंट ऐसे जाएगा उधर, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से उल्टा आएगा, यहाँ से जाएगा, अरे सॉरी करंट। ये वाइंडिंग कैसे करें? ये वाइंडिंग ऐसे है मेरा, ऐसे गया और ऐसे निकला, मतलब वाइंडिंग कैसा है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट भी वैसे ही जा रहा है, मतलब करंट ऐसे नहीं जाएगा, करंट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे यस सर नो? तो इफ माय करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स क्यू। यहाँ पे कैसे चलेगा? करंट मूव कर, हाँ नॉर्थ पोल कहाँ पे आएगा? इसके उल्टा। ध्यान में क्या रखिएगा? एक वाइंडिंग ये ध्यान में रखिएगा, इसको अगर प्लस माइनस को ऐसे दिखा तो इसको प्लस माइनस को उल्टा दिखा, क्योंकि वाइंडिंग उल्टा है, जो ऐसे घुमाना था उसको ऐसे दे तो उल्टा से घुमाए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मिरर में मिरर इमेज दिखती है ना, जेब मेरा दाया है, सॉरी बाया है तो दाया दिखता है, यहाँ पे आपको दाया दिख रहा है, हाँ मेरा जेब बाया है, जेब जेब तो बाई साइड का, डबल पॉकेट नहीं है मेरा, पुराने वाला, पुराना आदमी। तो ये ऐसा है, अरे सर तो यहाँ पे मेरा आएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा साउथ। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, हो गया सिंपल बात। ये क्या है? ये वाइंडिंग कैसा है? वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज, उसके उल्टा करंट यहां से चालू करेगा ना, तो करंट ये ऐसा ना वाइंडिंग ऐसे, तो करंट यहां से चालू करेगा, मतलब तो ऐसे घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ को यहाँ पे जाएगा, वैसे भी नहीं चाहिए तो इसको देखो नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे
नॉर्थ यहाँ, अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन गया साउथ, और ये ऐसे फील्ड लाइन ऐसे रेस कर। These are the four cases how we can trace the magnetic field inside and outside the solenoid field lines. Understood my point? Is there any query? Is there any doubt? इसी को अगर बीच में मैं अंदर में आयन का सॉफ्ट आयन का कोर उसमें डाल दूं, ये मानो मेरा सॉफ्ट आयन कोर है, इसके अंदर में डाल दूं, तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो वर्क करता है जब इलेक्ट्रिसिटी हो तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। जैसे आपका बेल होता है टिंग टोंग ट्र, बटन दबाया तो ट्र, क्यों? वो जो हैमर होता है वो आर्मेचर और हैमर वो घंटी, इलेक्ट्रिकल बेल। 10th में रट के मार्क मिला है, मालूम है मार्क कितना है? कि बहुत है, तो वो इलेक्ट्रिकल बेल ने दिया है आपको मार्क, अगर आया हो तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, उसमें भी सोलेनॉइड होता ही है। तो सोलेनॉइड ये अलग सा कुछ कंसेप्ट नहीं है, वो अपना नॉर्मल कंडक्टर ही है। उसको हमने क्या किया है हमको मालूम है, इफ द कंडक्टर इज मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल देन इट विल बी वर्किंग एज अ मैग्नेट, और उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके अंदर अगर हमने आयरन कोर डाला तो वो सोलेनॉइड नहीं रहता है, वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आपको बताने का जरूरत नहीं, ये तो हमने सबने सीख लिया। तो सर हमने क्या करना है, ये तो बता रहे हो नहीं करना है, हमने क्या करना है? तो आपने क्या करना है, ये सोलेनॉइड के ऊपर सॉरी ये पानी गले में ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, नहीं तो लगेगा सर को खांसी है सर्दी है, कुछ नहीं है, आराम से 6 महीने से रेगुलर आ रहा हूँ स्कूल में, नो प्रॉब्लम, और वो भी नहीं सकता। So what to do? Nothing. Mu naught n I. For board, you have to go for the derivation mu naught n I. लिहून घ्या बघू नका तोंडाकडे, माझा 13 बघून मार्क नाही मिळणार परीक्षेत, पांढऱ्यावर काळा केलं तर मार्क मिळणार. Now how to deal with that? So let's go with your NCERT. Let's go with your NCERT. तो बेटा एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, मास्क ऊपर रखा हाथ पर लावना नहीं, मास्क की जरूरत है। सोलेनॉइड के लिए इतना सब दिया है, ये सब मैंने आपको, ये देखो ये पूरा पेज नंबर कौन कितना है बेटा, पुराने बुक का 151, पुराने बुक का 151, तो आपके बुक में देखो वो सोलेनॉइड के ऊपर सब दिया है। तो उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये जो डायग्राम है 4.18, ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, और उसका डेरिवेशन उन्होंने करके दिया है 3-4 स्टेप में है। ये देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ठीक से दिखाते हैं, ये देखो ये जो डेरिवेशन है यहाँ पे, ये पूरा ये आपको करना है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज दैट? BL इज इक्वल म्यू नॉट आई म्यू नॉट NH वगैरह वो जो है वो करके आपको म्यू नॉट NI का डेरिवेशन, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पूरा आपको पहले वीडियो में दिया है। If you are able to recall, then you may recall. अरे yes ना, Asabri, do you have that derivation? वीडियो है ना आपके पास, तो आज घर में जाके वो वीडियो निकाल के वो डेरिवेशन अपना बोर्ड के लिए तैयार करो। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मायने रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न पर यूनिट लेंथ, हाँ, और एक आता है टोटल लेंथ, बराबर। अगर टोटल लेंथ लिया मैंने L, टोटल लेंथ कितना लिया L लिया, और टर्न पर यूनिट लेंथ N लिया, तो टोटल टर्न कितना आएगा बेटा, टोटल टर्न बोलिए N इंटू L,
ये बन जाएगा टोटल टर्म। अरे ये सॉरी, तो कभी कभी वो कैपिटल एन से भी लिखते हैं। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि आपकी बुक में या टोटल टर्म दिया है, नहीं तो टर्म पर यूनिट लेंथ के फॉर्मेट में दिया है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए जरा बेटा, वहां पे एन क्या दिया है, वेर एन इज इक्वल टू दिया होगा, पहले दिया होगा। तो आज थोड़ा बुक में वो उसको थोड़ा सा रीड करो। टर्न पर यूनिट लेंथ दिया है ना, तो मतलब हमने जो लिया है वी नॉट एन आई, अगर वो स्मॉल एन है तो उन्होंने दिया है टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है उससे हमें समझ में आएगा। ये दिया है ना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर बराबर। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हाँ, तो आपके लिए बोर्ड के लिए तो आएगा, जो बच्चे सीईटी देने वाले हैं उनके लिए मैंने क्या बोला है, सेमी फाइनाइट इनफाइनाइट वो सब करके लेना है आपको सेपरेटली, एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर सी गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। मैं सीईटी के लिए आपको सबको फॉर्मूला का शीट मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। हाँ, you are there for some Google Meet, in that I have said. If it is not, then it will be with Aniruddha. I will give to you. First you consult me. Your number must be with me. Once you will say hi, then only I will send. Right? Means now he is here, na? So I know that Atharva is with us. So I will send. ऐसे ही किसी को कैसे भेजूंगा? हाँ, तो आप बोलोगे तब मैं आपको भेजूंगा। बोलने से मिट्टी भी बिक जाती है, मिट्टी भी लिया तो बिक जाती है बोलने से। इधर मैं सब्जेक्ट को इधर उधर नहीं करता, ये आपको इम्पोर्टेंट, 100% इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड। राइट डाउन व्हाटएवर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, कल का भी थोड़ा सा नए बच्चे तो फिर से बोलता हूँ, बायोट सेवर्स लॉ स्टेटमेंट, दैट प्रूफ मींस स्मॉल, कैसे आता है, क्या आता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो क्या, वो इंटीग्रेट छोड़ो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कैसे आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वो कैसे आता है, दोनों का भी मीनिंग सेम है। ऊपर कैप लिखा तो नीचे स्क्वायर लिखा, कल भी बताया था परसों, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आ गया, तो उसमें स्टेटमेंट में क्या क्या है, आई करंट थ्रू द कंडक्टर, देन डीएल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ एलिमेंट लिया, डिस्टेंस एट विच इट इज देयर, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट, distance of the point, dl I dl cross r na, so that we have to keep it, so that Biot-Savart's law, then application of Biot-Savart's law कौन सा करना है आपको, कल दिया है मैंने, कल दिया है, करंट कैरिंग लूप, उधर नोट डाउन करके रखो, करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो वही यूज करने का, नीचे आएगा आपका a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ब्रॅकेट रेस टू 3/2, मिळालं का बुक मध्ये फॉर्म्युला असेल, काळजी करू नका, नाही मिळालं तर मला विचारा, a square plus r square bracket raised to 3/2 असा फॉर्म्युला असेल. इफ इट इज नॉट, माझ्या नोट्स कोणी कोणी लिहून घेतलाय लेक्चर बघताना, एक रोहित, हा आत्ताच नाही बाळा, हा जो टॉपिक शिकवला ना तेव्हाच्या नोट्स काढल्यात का बघताना लेक्चर, हा मग त्याच्यामध्ये दिलेलं असणार. आय एम टेलिंग टू यू ऑल्सो, when you saw that lecture na, I have given the notes for that particular dB cos theta, dB cos phi, dB sin phi and all. So application of Biot-Savart's law, that is important. Two applications, one is for coil on the axis and another is special case at the center of the coil. Getting my point? हे दोन फॉर्म्युल्यावर तुम्हाला इकडे तिकडे डेरिव्हेशन मिळेल. So be ready from right now. Now you will get your schedule also of the papers, soon it will be there with you, so accordingly you may plan your study, which topic to do in what span, है ना, okay, so don't be worried about it. So I am doing this because still till 30 na time is there, so this will be my last lecture I think. Once you will get na that schedule, once again we will start with short videos, मोठे नाही करणार, एक एक तासाचे this facility they will not be there now. Small videos I will post, 10 minutes, 5 minutes, some important questions, असं बोलत जाणार. शीट देऊन काय, शीट येतात जातात, त्याचा उपयोग बऱ्याच काळ पुढे बांधलेला होतो,
चणे फुटाणे खायला ते पुढे बांधत असेल, शीट्स नाही देणार, करणार नसेल, व्हिडिओ टाकला 5 मिनिटं. हां, स्पेशल कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन ऑफ गॉस लॉ. चला नको, like that I will try to do. The friends which are here, for them totally I will be here only, so they may ask their doubts. For you people I will be trying to send the concept videos. Okay, concept म्हणजे असंच असणार, आता ते चाललंय, आता काही टीचिंग वगैरे तसं काही नसणार आहे, हे असंच डिस्कशन. सो टुडेज व्हिडिओ ऑल्सो विल बी लिमिटेड एडिशन. हां, for the for further reading please contact in school. लॉग इन करायला लावतो ना तुम्हाला, शीट तुम्हाला वाचायला मिळते, डाउनलोड करायचं, लॉग इन व्हा, असं असतं ना तसं. नॉट लाईक दॅट आय वॉज जोकिंग. सो फॉर मॅग्नेट दिस इज इम्पॉर्टंट. सेकंडली राईट विथ यू टोरॉइड. टोरॉइड कोणाकोणाला समजलंय? टोरॉइडचं लेक्चर बघितलंय का? नसेल बघितलं तर आज बघून घ्या, घाबरू नका, होईल. इफ यू आर नॉट सीन, सी इट, वॉच इट. हां, असं मी काय म्हणत नाही, आता नाव घेऊन मी डायरेक्ट घेणार, काय प्रश्न नाही. आपली जशी अवस्था आहे तशीच त्यांची आहे, ते काय वेगळे नाही. ते घरात न बघता तुम्ही इथे बघा. सो टोरॉइड लिहून ठेवा 100% फॉर एक्झाम. काय? डेरिवेशन प्लस फॉर्म्युला प्लस एक्झाम्पल प्रॉब्लेम्स. That is for toroid. Are you getting my point? Okay. So moving charges magnet काय काय सांगितलं? बायोट-सॅवर्ट्स लॉ, ऍप्लिकेशन ऑफ बायोट-सॅवर्ट्स लॉ समजते का? नंतर सोलेनॉइड, डेरिवेशन ऑफ सोलेनॉइड अँड प्रॉब्लेम्स ऑन सोलेनॉइड. टोरॉइड, डेरिवेशन अँड प्रॉब्लेम्स समजलं? आणि डिलीटेड सिलेबस मध्ये काहीतरी टॉर्क ऍक्टिंग डिलीट केले ना, सांगितलं ना मी तुम्हाला. So let me find that also. Wait for a while. I think torque acting will be from deleted syllabus. Documents deleted servers. Wait for a while ना. हाँ, मिल गया. ओके, तो लिख लीजिए डिलीटेड सिलेबस, जिन्होंने पीडीएफ देखा नहीं है, मैंने तो सबको दिया था. मुव्हिंग चार्जेस मॅग्नेटिझम मध्ये फक्त सायक्लोट्रॉन नाहीये. सायक्लोट्रॉन इज डिलीटेड. फक्त सायक्लोट्रॉन डिलीट केलाय, बाकी सगळं आहे. ओनली सायक्लोट्रॉन हॅज बीन डिलीटेड. सायक्लोट्रॉनला डिलीट करून टाका, पण आपल्याला तो तिकडे लागणार आहे. So for CET student, what you have to look after? Once the state board will declare the deleted syllabus for CET, we will look after that. Are you getting my point? So तिथे JEE साठी once they will decide, that will be there. For board it is ready, deleted syllabus. So cyclotron तुम्हाला शिकवलेला आहे ना सगळ्यांना. अरे cyclotron I have taught you. So for board you may delete that from your mind, but don't delete it directly from your mind. हां, 2πm/qb वगैरे सगळं लागतं तुम्हाला. असं काय सायक्लोट्रॉन त्याचे भरपूर आहेत, उपयोग भरपूर आहे. बिकॉज I have solved those problem in dual nature also. After atoms topic I have solved some problem from that point. So formula you have to keep it. सायक्लोट्रॉन तुम्हाला लिहायला लागणार. Are you getting my point? समजलं? Okay. So cyclotron will not be there. Now 2 points are remaining. That is force between two parallel conductors and torque acting on a coil, rectangular coil. समजलं? So ते लिहून घ्या. ते मी मध्ये तुम्हाला एखादा छोटा व्हिडिओ करून देईन. Force acting on two parallel conductors. आयडिया सांगतो काय करायचं ते. एव्हरीबडी हॅज स्टडीड इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स है ना बेटा? हां, सो सेम हियर इट विल बी मॅग्नेटिक फोर्स, बाकी काही चेंज नाही. सो वन्स वी आर युजिंग 1/4 एप्सिलॉन नॉट ना, त्याच्याऐवजी आपण काय वापरायचं? म्यू नॉट अपॉन 4 Q1 Q2 साठी काय वापरायचं? M1 M2 म्हणजेच M. हां, लाईक दॅट मॅग्नेटिक फोर्स. हां, सो इफ these are the two conductors, आता बघा काय नीट बघू, फक्त एक्सप्लेन करतो.
सांगितलेलं सगळ्या व्हिडिओला. आय हॅव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी, बट स्टील फॉर यू पीपल as a bumper offer. Currents are flowing in same two parallel currents. Right hand rule. So magnetic field. तो यहाँ पे क्या होगा? इनसाइड ना. तो क्या मैं क्रॉस लिखूं यहाँ पे? क्या मैं यहाँ पे डॉट लिखूं? और तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा. कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? आपको बोला है, ऊपर से देखा तो कैसे दिखेगा? ऐसे सर्कल दिखेंगे. तो जितना आप नजदीक रहोगे उतना फील्ड ज्यादा, जैसा दूर जाओगे उतना फील्ड कम. तो वो कैंसलिंग वगैरह अभी देखने का नहीं है, अपन को देखना है खाली फोर्स. तो इसको अगर मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, so there will be force on 1 by 2 and there will be force on 2 by 1. Whatever it may be, attractive, repulsive, whatever, or yes or no. So for that force we have made one formula, BIL sin theta, or yes or no, means what? ILB, BIL sin theta म्हणजे काय? B is the magnetic field, I is the current through the conductor, and L will be the length element. So L cross B it will be I into L cross B. Is it there given? Not directly given. I into L cross B. So कहाँ पे लेंथ है, कहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड है. वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पर डालो, तो मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा सब. तो बीच बीच में मैं उसका वीडियो भी करूँगा, जब अपना मैग्नेट का आएगा उस टाइम में करूँगा. अंडरस्टूड? तो अभी के लिए BIL sin थीटा भी ध्यान में रखा तो चलता है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो वहां से F1 to F21 निकालोगे. सब डेरिवेशन करके दिया है, लेक्चर देखना आपका जिम्मेदारी. I don't know what is the name. I think name is given. Moving charges magnetism, lecture 2, lecture 3, lecture 4. ते बघा. अरे सर नाही बघितलं तर नापास व्हा. नापास म्हणजे येणार नाही ना परीक्षेला लिहिता, ब्लँक राहील. आणि मी स्पष्ट बोलतो बाबा, मी तुम्हाला काय डिमोटिवेट करत नाही. Those who will not write the paper, they will not able to qualify for the passing marks. I am not there to write your papers. I am there to guide you once, twice, thrice. I'll be guiding you. If you still not do that, then you'll not be able to write the answer. And at that time, nobody is with you. Understood? While enjoying, everybody is with you. You're getting my point? While enjoying, everybody will be with you. Separately studying at home. And if you are not doing that, then you will be not able to qualify that. And everybody will be going ahead and you will be lagging behind. That is the point. I'll be telling, there's a big pit in front of you. It's your decision. You decide whether to go ahead. But this step forward or not. अगर वहाँ पे फॉरवर्ड करोगे तो खाई में गिर जाओ. बताने का काम किया, पहले ही बताया 1 किलोमीटर के आगे है. 1 किलोमीटर से बता रहा हूँ. अभी 500 मीटर आ गया, जैसे गूगल मैप पे दिखा. 200 मीटर, 100 मीटर, अभी आगे अभी. हाँ, पैर डालना नहीं डालना आपका. डाल दिया पैर तो नीचे डाल. खाई है, पीठ भी नहीं, पीठ छोटा होता है ना, गड्ढा होता है. गड्ढा नहीं, खाई और गड्ढा में फर्क होता है. सो मैग्नेटिज्म, हाउ मेनी मार्क्स आई टोल्ड फॉर मैग्नेटिज्म? फॉर 2 टॉपिक्स. उसमें भी डिलीट किया है, मतलब इसके ऊपर अंदर ढूंढ के क्वेश्चन निकालेंगे. अरे यस और नो. सो डोंट बी गेटिंग डिसअपॉइंटेड और प्रेशराइज. अभ्यास करत चला, काही येणार नाही मला विचार. आय एम देअर फॉर यू. तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे मला, अख्खाच्या अख्खा वापरून घ्या. समज? हां. So we are there, only the job is to make the points. So I think whatever I have told you about the topic, force acting on the parallel conductors and torque मध्ये काय आहे ना, mb sin theta. हां, ते सांगून ठेवतो तुम्हाला. ही 2 डेरिवेशन अजून करा.
डेरिव्हेशन फॉर फोर्स ऍक्टिंग स्मॉल मध्ये करून ठेवा. नसेल तर मला सांगा, आय विल हेल्प यू. डायग्राम काढायची, 2 फोर्स द्यायचे, F12 F21 आणि कॉमन फोर्सचं डेरिव्हेशन, संपला विषय. नथिंग इज डिफिकल्ट. ज्यांना अजिबात येत नाही त्यांनी मी सांगतो तेवढं लिहून ठेवा. तेवढं 2-2 दिवसांनी वाचत चला. मी आता नावं घेणार नाही, वाईट वाटतं ना समोर जसं माझं नाव घेतलं म्हणजे मला काही येत नाही काय, म्हणून मी नाव घेत नाही. हळूच मला येऊन तसं मराठीचा जरा प्रॉब्लेम आहे, ते आपल्या लक्षात राहत नाही. मला एक शॉर्टकट द्या, मी तेवढं आपलं लिहून येतो परीक्षेत, नो प्रॉब्लेम. सिस्टीम इज विथ यू. तेवढं जरी केलं तरी इथे काय तुम्हाला कोण विचारणार नाही. हां, हॅव यू रेड दिस? नो. इफ यू हॅव रिटन इन द आन्सर शीट इट मीन्स दॅट यू आर नोईंग दॅट, लाईक दॅट इट इज दॅट. सो फॉर बोर्ड बी प्रिपेअर्ड इन दॅट वे. बस आपल्याला ते क्लिअर करायचं आहे व्यवस्थितपणे. आणि मला आय वॉन्ट एव्हरीबडी टू सिक्युरिंग 70+. मला कोणी 70च्या खाली नकोच आहे. ते दिवस गेले. 60, 58 नाही. एवढं क्वालिटी माल मिळालाय तुम्हाला. क्वालिटी माल माल बोलतो असं, क्वालिटी माल आहे आपल्याकडे, विकला गेलाच पाहिजे. 70 रुपीज कमीत कमी द्यायचे मला. मी तर 100 रुपये मागतोय, 70 तर आलेच पाहिजे. आता माल घेऊन जाणार ना तुम्ही, एक्झामला जे माल घेऊन जाणार मी दिलेला, आता तुम्ही कसे तो माल विकता बघूया. तुम्ही पेपर लिहिणार म्हणजे तो सेल करणार ना माल, मग ज्याची सेलिंग क्वालिटी चांगली त्याला हे मिळणार. मार्क म्हणजे तुमचे पैसे. पहिला क्वेश्चन म्हणजे एक आयटम विकला, चला 2 मार्क मिळाले. असे तुम्हाला 100 करायचे. सो युअर टार्गेट विल बी 70. सो ईच वन मस्ट बी गिविंग 70, नॉट लेस दॅन 70. मिनिमम 70 डिस्टिंक्शन. मी 75 म्हणतो, ठीक आहे, मिनिमम 75 ॲट एनी कॉस्ट. डू ऑर डाय. ओके, आर यू रेडी फॉर दॅट? आवाज आला ना? Some voice is coming. My feelings. I don't know whether they are false or true. Everybody understood what to do in this topic? Is there any need to further explain? Because now you will have your personal doubts. So I am not going to waste your time in giving you the explanation repeatedly. You may ask your personal doubts, whatever are there. For you people also I am telling, I am going to stop this lecture here because you may be having your personal doubts. All points I have told you, do accordingly. So till that, stay home, stay safe and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. We'll meet tomorrow. Bye-bye.